Hope you are doing well. So today I am going to talk with my B.Ed second semester student, basically pedagogy of English. Okay. So my student, today I am going to talk about assessment. Okay. What is assessment? What is assessment skill in English language? And what are the various types and principles of assessment. So before starting my lecture, let me tell you that when we are talk about assessment, there are certain things which comes to our mind. Okay, like the words like test, assessment, evaluation, measurement, these are the interchangeable words. जब भी हम लोग बात करते हैं what is test, what is assessment, what is evaluation, what is measurement, so we sometimes we get perplexed, or you can say sometimes we get confused कि is all are same or there is any difference between these. Means test क्या है, assessment क्या है, evaluation क्या है, मेजरमेंट क्या है, क्या सभी एक जैसे हैं या फिर ये एक ही वर्ड के अलग अलग टर्मिनोलॉजी है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है. ओके, तो मैं स्टूडेंट लेट मी टेल यू. बेसिकली सबसे पहले मैं टेस्ट का बात करूंगी. व्हाट इज टेस्ट? यानी जब भी हम लोग टेस्ट को सुनते हैं तो व्हाट इज कम टू योर माइंड, आपके माइंड में कमिंग द वर्ड्स लाइक यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट. ओके, यस इट इज. यानी क्या होता है कि टेस्ट इज द मोस्ट what can say most important and most easy going item for testing anything. Basically it is a measurement tool. ये एक measurement tool है और it is a series of items or series of questions जिसके through we try to measure the knowledge level or the ability of student. क्या होता है, suppose कि you have completed one unit, you have completed one particular concept. So after completing particular concept or after completing particular unit, before starting the next unit, you want to be get ensure that इस यूनिट के लिए या फिर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर वट एवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाज, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, इट वाज अटेन्ड और नॉट. What is the behavioral outcome or what is the learning outcome of my learner. To know those learning outcome, to know that behavioral change, we take the test. और ये टेस्ट जो होता है ये हमेशा क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर. जब भी आप टेस्ट लेते हो देन वी कम अप विद सर्टेन स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्कोर वी प्रिपेयर द परसेंटेज, परसेंटाइल और ग्रेड. Okay, so test is the most commonly used form of what can I say feedback. यहाँ पे हम लोग बच्चों का जो भी उनका फीडबैक हुआ है या जो भी उनका अटेनमेंट हुआ है, जो भी उनका अचीवमेंट हुआ है, वो हम पता करते हैं. और टेस्ट जनरली वी आर हैविंग लाइक परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोग्रेसिव टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वी आर हैविंग एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट टेस्ट. सो दे आर द टाइप ऑफ टेस्ट, बट आवर टॉपिक for learning today's assessment. Okay, so what assessment is? Sometimes we get confused between the assessment and evaluation. Okay, so let me tell you, assessment is different than evaluation. Evaluation is more umbrella term. Evaluation is an umbrella term or it covers all the assessment process, टेस्टिंग प्रोसेस एंड मेजरमेंट प्रोसेस. क्योंकि ये जो इवेल्युएशन इज लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे हम इंश्योर करते हैं और हम देखते हैं कि हाउ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. और जो हमारा इवेल्युएशन है इट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वी आर गिविंग आवर जजमेंट, वी आर प्रोड्यूसिंग आवर वैल्यू जजमेंट. ओके, बट वेयर इज असेसमेंट जो है इट इज लाइक इट्स अ टाइप ऑफ जर्नी. ओके, एंड इट इज ऑलवेज इन what can I say qualitative in nature. ये जब भी होता है ये qualitative in nature होता है. It is never quantified. It is an ongoing process जहाँ पे हम how and how much of teaching learning को decide करते हैं. क्योंकि with the help of assessment हमें पता चलता है कि where we are lying, कहाँ पे हम लोग खड़े हैं या फिर how far we come and how far we have to go. तो ये जो how far we come and how far we have to go जो ये है, इस चीज को हमें कौन बताता है, assessment. So
बेसिकली हम बोल सकते हैं कि असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड वी आर नेवर गिविंग एनी टास्क और वी आर नॉट टेकिंग एनी टेस्ट अंडर फॉर असेसमेंट. असेसमेंट जब भी होता है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ what can I say, qualitative aspect, जहाँ पे we are using certain types of क्या बोलोगे, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, ओके, या फिर हमारा ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर, ओपन आयर, इंटरेक्शन, इंटरव्यू. दीज आर द मेथड जिसके थ्रू वी ट्राई टू असेस द सिचुएशन और वी ट्राई टू असेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और इसको जो करने के लिए वी आर यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ स्केल्स और सर्टेन टाइप ऑफ लेवल्स. सब स्केल्स और लेवल्स को यूज करके वी आर असेसिंग द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. और असेसमेंट का जो रिजल्ट है ये कभी भी नंबर्स में नहीं आता. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ कमेंट. ओके, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है या फिर जो भी हम असेस करते हैं उसको हम इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट और इन द फॉर्म ऑफ कमेंट हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं. वी गिव द नेसेसरी criteria also, we give the necessary feedback also. Okay, so now we have to know something about assessment in English language. Okay, so my student, basically as we know that English basically as a language, English language teaching is a subject where we always talk about the communicative aspect. ओके, जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट लाइक आपका साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, वहाँ पे क्या होता है कि वी टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स. ओके, बच्चे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं एंड व्हेन वी आर डूइंग द असेसमेंट और टेस्टिंग और इवैल्यूएशन, हम लोग उनके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या उनका अंडरस्टैंडिंग है, हाउ कैन दे अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट, उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं. But the thing is something different with language teaching. Language teaching में though we are reading the literature with the help of poetry, prose, stories, drama, fiction, novels, okay, but though we are going through literature, but our aims and objective is the attainment of language abilities and language competency. Okay, so यहाँ जो language teaching में हमारा जो assessment होता है, that is the assessment of our communicative competence. Okay, that is our meta-linguistic awareness, our meta-linguistic features. Okay, so here we are assessing more about our communicative aspect or the 4 skills of English language, that is listening, speaking, reading and writing. Okay, no matter that what we are teaching, but हमारा जो assessment होता है that is more oriented to the attainment of skill, attainment of communicative competence, attainment of our communicative aspects. Okay, so यहाँ पे जो assessment का रोल बहुत ही important हो जाता है, क्योंकि with the help of assessment जो है हम क्या करते हैं, हम assess करते हैं कि is our learners are moving in the right direction. And basically as you know that English is always a second language or third language in our country. हम लोग हमेशा इंग्लिश को as a second language और third language पढ़ाते हैं. So for तो जब आप सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में जब हम लोग इसको एज अ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो इसको असेस करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सर्टेन टूल एंड वी हैव टू इंश्योर दैट कि यस लर्नर्स आर अटेनिंग दोज स्किल्स और नॉट. ओके, समटाइम्स क्या होता है कि सम लर्नर्स आर वेरी शाय. ओके, they can't speak fluently but in their writing skills they are good. Okay, so on the basis of their spoken inability we cannot say they are poor in all the skills. Okay, sometimes vice versa भी है, they are not good in their writing ability. Okay, maybe because of their vocabulary issues or their grammatical error or the sentence structure error, but they are good with their spoken ability or spoken part. So in English language it is so difficult to judge that is their listening, speaking, reading and writing skill are okay or not. Okay, they are gaining there or not, they are improving 4 skills simultaneously or one skill is developing, another skill is neglected. Okay, so here the role of assessment is immense. So with assessment we try to know that our learner able to attain the communicative competence, क्योंकि हमारे जो भाषा को पढ़ाने का जो मेन एम ही होता है to develop their communicative competence. So assessment इसमें हम
कर सकते हैं दो तरह से। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ असेसमेंट, दैट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इट इज बेसिकली इंटरनल इन नेचर और ये इनफॉर्मल होता है। वाई वी आर टेकिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चे को जब भी आप कुछ पढ़ाते हुए ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी यूनिट और एनी सब यूनिट वी टेक द फॉर्मेटिव टेस्ट। तो और विद इन ईयर या फिर विद इन अ सेमेस्टर हमारा कम से कम 2-3 फॉर्मेटिव हम लोग लेते हैं। क्यों? ये फॉर्मेटिव टेस्ट से हम इंश्योर करते हैं कि वी आर एबल टू अटेन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव और नॉट, वी आर अटेनिंग आवर टीचिंग ऑब्जेक्टिव और नॉट। में जो अभी आपका ऑब्जेक्टिव था रिगार्डिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और एनी अदर क्राइटेरिया, वो आपका अचीव हो रहा है या नहीं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज सो मच इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वी आर अटेनिंग आवर एम्स और ऑब्जेक्टिव और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मॉडिफाई आवर टीचिंग। ओके, बट उसका जो अपोजिट है दैट इज योर समेटिव असेसमेंट। ओके, एंड समेटिव असेसमेंट इज समथिंग डिफरेंट इन नेचर। इट कम्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स, एंड इट इज फॉर्मल इन नेचर और यू कैन से इट इज एक्सटर्नल इन नेचर। ये फॉर्मल भी है और एक्सटर्नल भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट असेसमेंट वी आर गिविंग द पोजिशन, वी आर गिविंग द our overall judgment. Okay, so we are having two type of assessment, that is formative and summative. Formative जो है ये ongoing है, it's help under our feedback mechanism, but जो summative है it comes at the end of the course, at the end of the semester. Okay, and apart from that we are having certain principles of असेसमेंट, क्योंकि जब भी हम कुछ असेस करना चाहते हैं, कोई असेसमेंट टूल डेवलप करते हैं, सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। उस प्रिंसिपल को फॉलो करके वी आर मेकिंग आवर असेसमेंट टूल। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव वन प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिबिलिटी। ओके, प्रैक्टिबिलिटी मीन्स आप, क्योंकि जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, हाउ फार एंड हाउ मच इट इज प्रैक्टिकल। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भी असेसमेंट टूल डेवलप किया है इट इज टू एक्सपेंसिव, इट इज टू कॉस्टली, इवन इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। ओके, तो ये जो प्रैक्टिबिलिटी एस्पेक्ट है इसको हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो प्रिंसिपल है दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी मीन्स आपका जो टेस्ट है इट शुड बी रिलायबल। अगर मैं कोई भी मेरा मान लो टूल है, असेसमेंट टूल है, और अगर आप लोग माय स्टूडेंट आप लोग के ऊपर अगर मैं उसको एम्प्लॉय करती हूँ, तो जो रिजल्ट आता है वो सेम रिजल्ट अगर मैं उस टूल को कहीं दूसरे कॉलेज में जाके एम्प्लॉय करूंगी या दूसरे स्टेट में भी जाके उसको मैं एम्प्लॉय करूंगी, तो मोर और लेस रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी। उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, मीन्स आपका जो भी रिजल्ट के लिए आप सोच के ये टूल को डेवलप किए हो, दैट टूल से आपको वो पर्टिकुलर वो रिजल्ट में ही आपको ये टूल काम कर रहा है, आपको वो रिजल्ट ये टूल से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स आपका जो टूल है, टूल का जो आइटम्स है, टूल का जो क्राइटेरिया है, जो लेबलिंग है, हाउ फार इट इज ऑथेंटिक। मीन्स आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है ज्यादा, अगर आपने कॉपी भी किया है तो इट इज रेफर्ड और नॉट। ओके, एंड देन आपने जो वट एवर योर कंटेंट, वट एवर योर कॉन्सेप्ट, वट एवर द एज ऑफ द लर्नर, ग्रेड ऑफ द लर्नर, उसके अकॉर्डिंगली ये सुटेबल है या नहीं, दैट वी हैव टू सी। एंड द लास्ट principle is principle of washback. Okay, washback means the weakness and strength. Okay, what is the weakness and what is the strength of the particular assessment tool, उसको हम लोग इसके अंदर में देखते हैं। तो they were the principle, इसको हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे आगे स्लाइड्स में। So now follow the slides for assessment in language learning. Okay, so first we should know what is assessment. Okay, assessment is not the same as testing, as I told you. It is an ongoing process. Okay, to ensure that the course, class objective and goals are met. It's a process, not a product. Okay, as I told you, it's an ongoing process where we try to see that how much teaching learning process is moving and how well.
and the purpose of assessment, why we are doing the assessment. Okay, to diagnose the student's strength and need, provide feedback on students learning, provide a basis for instructional placement, inform and guide instructions, communicate learning experience, motivate and focus students attention, and to practice applying knowledge and skill. Okay, so these are the थिंग कि वाई वी आर डूइंग द असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट के थ्रू हमें एज ए टोल्ड यू कि वी गेट द प्रॉपर फीडबैक. Purpose continue. It also provide a basis for evaluation for the purpose of grading, promotion, grading, program admission, selection, accountability and gauge program effectiveness. Okay, so क्या होता है जनरली जो हमारा जो असेसमेंट है, इसके थ्रू जो है बच्चों को हम कैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रमोट करेंगे, हाउ वी कैन मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर लर्निंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वी डू थ्रू असेसमेंट, एंड इससे वी गेट द प्रोविजन फॉर आवर इवेल्युएशन ऑल्सो. Then, as I told you, we have two type of assessment, formal and informal. What formal assessment is and what informal assessment is. As I told you, कि formal assessment जो होता है, that is different from informal. Informal assessment can take a number of forms like unplanned comments, verbal feedback to student, observing student to perform a task or work in a small group and so on. Whereas the formal assessment होगा are exercised or procedures which are means जो formal होगा that will be summative in nature. इसमें क्या है, student and teachers and appraisal of student improvement such as test. फॉर्मल में जो होगा जब भी होगा ये सिस्टमेटिक होगा और इसका क्या होगा, रिजल्ट बेस्ड होगा. देन कम व्हाट आर द असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट. असेसमेंट के लिए हम लोग क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज प्री टेस्ट for our diagnostic purpose, we can use quiz for our formative purpose, we can use teacher made test for our summative purpose. Okay, pre-test में क्या क्या है, diagnostic में we have pre-test, observations, journal, log, discussions and questionnaire, whereas formative में we have quiz, discussion, assignment, projects, observation, portfolios, journal logs, standardized test. whereas summative में क्या क्या है, teacher made test जो कि क्या क्या है, portfolio, projects and standardized test. Okay, now principles of language assessment, as I were telling you, it is practicality, reliability, validity, authenticity and washback. Okay, what practicality is? Usually practicality is an effective test, is practical. Okay, it's not excessively expensive, stays within appropriate time constraints, is relatively easy to administer, has a scoring evaluation procedure that is specific and time efficient. तो as I told you कि practicality जो है उसमें हम देखते हैं time constraint, उसमें हमारा जो economical जो constraint है उसको जो हम लोग देखते हैं और जो ध्यान देते हैं, that comes under practicality. Then come reliability. A reliable test is considered that a reliable test is consistent and dependable. If you give the same test to the same student in two different occasions, the test should yield similar result. Okay, as I told you कि इसमें क्या होता है रिलायबिलिटी में कि आप उस टेस्ट को जब भी और जहाँ जहाँ यूज़ करोगे मोर और लेस जो है आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा. अगर सेम बच्चों पे भी अगर आप दोबारा उसी टेस्ट को कुछ टाइम के बाद अगर ये करोगे तो टेस्ट सेम आएगा. अगर सेम टेस्ट को दूसरे बच्चों पे भी अगर आप ये करोगे, अप्लाई करोगे, तो टेस्ट क्या आएगा, अलग, उसको रिजल्ट क्या आएगा, सिमिलर आएगा. सो इस रिलायबिलिटी का टाइप्स क्या क्या है. पहला क्या है, स्टूडेंट रिलेटेड रिलायबिलिटी. ठीक है, जब भी हम लोग कोई टेस्ट बनाते हैं तो मीन्स मान लो कि आप मैं टेस्ट को कंडक्ट कर रही हूँ, तो क्या होता है समटाइम्स जो है बच्चे होते हैं, आप मान लो वो ऐसे ठीक है लेकिन टेस्ट के टाइम बीमार हो गए, दे आर नॉट मेंटली फिट, दे आर नॉट फिजिकली फिट. ओके, या फिर आज आने वाले दिन में उनके घर में कोई ऐसा एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण से वो बच्चे क्या है, दे आर फीलिंग सैड. ओके, दे आर फीलिंग सो सैड
कि एज इफ जो है उनका असर जो है उनके टेस्ट पे आ रहा है। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं, वो जो टेस्ट का वो रिलायबिलिटी मीन्स बच्चे दे आर नोइंग, पहले टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया लेकिन उस पर्टिकुलर टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया क्योंकि उनका जो अदर फैक्टर्स है वो टेस्ट पे क्या कर रहा है, असर डाल रहा है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट रिलेटेड रिलायबिलिटी में मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। फिर है रेटर रिलायबिलिटी, जैसे दोज हु आर कंडक्टिंग द टेस्ट, ओके, जो भी उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है, जो भी रेटिंग कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज कि आई एम अ एसेसर, मुझे आपका रेटिंग स्केल या आपको एसेस करना है, ओके। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कुछ बैचनेस है, इफ़ आई एम नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट कि मैं आपको ठीक से एसेस कर रही हूँ, तो इन दैट एरिया वो टेस्ट का रिलायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलायबिलिटी। ये क्या होता है कि आप सपोज कि आप जहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आप टेस्ट को जो है वो एसेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि आउट बाहर में बहुत सारा नॉइज़ है, द प्लेस इज़ नॉट जो है असेसमेंट फ्रेंडली, बहुत नॉइज़ है, कुछ ऐसा कारण हो गया कि करंट चला गया, स्टूडेंट आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ओके। तो आप वहाँ जो टेस्ट करने का जो प्लेस है वहाँ पर अगर किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस होता है एडमिनिस्ट्रेटर करने के में, अगर आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देना भूल गए एंड वो उन्होंने टेस्ट को गलत, उन्होंने असेसमेंट को गलत रिप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलायबिलिटी में आता है। इसको भी हम लोग को ध्यान देने का कोशिश करते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग टेस्ट रिलायबिलिटी, ओके। टेस्ट रिलायबिलिटी मीन्स ये जो टेस्ट है कितना रिलायबल है, मीन्स उसमें आपने जो भी क्वेश्चन डाला है, जो भी आइटम डाला है, हाउ फार इट इज़ रिलायबल, ये क्या है, बहुत उसको पढ़ने से सेम मीनिंग सबको कॉन्वे हो गया, नहीं कोई अपनी कोई एम्बिगुअस सेंटेंस तो नहीं है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, एवरीबडी विल हैव द सेम मीनिंग जो भी उस टेस्ट को पढ़ेगा। दे आर द क्या बोलोगे, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। नेक्स्ट वी आर हैविंग वैलिडिटी। वैलिडिटी, अ टेस्ट इज वैलिड इफ इट एक्चुअली असेस द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट हैज़ बीन टॉट, ओके। तो वैलिडिटी को हम क्या ध्यान देते हैं कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स था और जो भी आप पढ़ाए हो उसको ही आप एसेस कर रहे हो या नहीं, दैट इज़ वैलिडिटी। वैलिडिटी भी कितने तरह का होता है, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, consequential validity, and one we are having face validity, okay। तो फर्स्ट क्या है आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मीन्स जो भी आपका कंटेंट है वो कंटेंट आपका कितना कवर हो रहा है, इसको हम लोग इसमें ध्यान देते हैं कि आपका जो भी आप असेसमेंट टूल है, आपका जो भी आपका असेसमेंट का प्रोसेस है, इट शुड बी बेस्ड ऑन द कंटेंट। आप जिनके लिए बच्चों के लिए बना रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने उनको पढ़ाया कुछ लेकिन आपका असेसमेंट टूल में कुछ और है, तो इट शुड बी अकॉर्डिंगली उसमें एक क्या बोलोगे, समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी मीन्स आपका क्राइटेरिया कहाँ तक फुलफिल हो रहा है, मीन्स आप जैसे सपोज आपने बच्चों को जिस मेथड से पढ़ाया, ओके, जिस मेथड से पढ़ाया, लेकिन टेस्ट लेने के टाइम अगर वो आपका मेथड क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, मिसमैच होगा। नेक्स्ट क्या है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स जो आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है असेसमेंट का वो कितना ऑथेंटिक है। नेक्स्ट है आपका कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी, ओके। कंसिक्वेंशियल वैलिडिटी मीन्स इसको अगर आप अलग अलग उसमें यूज़ करते हो तो भी जो है आपका वो क्या होगा, एक्यूरेसी होगा, इसका जो इफेक्ट है ऑन द लर्नर, ऑन द टीचर, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपका फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मीन्स कि आपका ये असेसमेंट, आप जिस चीज़ को क्लेम कर रहा है आपका ये असेसमेंट, आप इस असेसमेंट टूल के थ्रू आप जिस चीज़ को जानना चाह रहे हो, आपका ये टूल आपको उस चीज़ को जानने में हेल्प कर रहा है या नहीं, दैट इज़ योर असेसमेंट वैलिड फेस वैलिडिटी। देन ऑथेंटिसिटी, ओके, मीन्स आपका जो ये असेसमेंट का जो तरीका है, असेसमेंट का जो टूल है, हाउ फार इट इज़ ऑथेंटिक, द लैंग्वेज इन द टेस्ट इज एज नेचुरल एज पॉसिबल, आइटम्स आर कंटेक्चुअलाइज्ड रादर देन आइसोलेटेड,
topics are relevant and meaningful for learner. Some thematic organization or item is provided or not. Task represented or closely approximate real वर्ल्ड टास्क. ओके, मीन्स आपका जो टेस्ट होना चाहिए, आपका जो असेसमेंट टूल होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी ऑथेंटिक. उसका जो लैंग्वेज है वो सिंपल होना चाहिए. उसका जो टॉपिक है शुड बी मीनिंगफुल. इसमें जो आप टास्क दे रहे हो वो क्लोजली अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए और वो इट शुड सीम्स रियल. ओके, इट शुड नॉट सीम्स अनरियल. Washback. Washback refers to the effect the test have on instruction in terms of how students prepare for the test. Cram courses and teaching to the test are example of the washback. In some cases, the student may learn when working on a test or assessment. Washback can be positive or negative. As I told you कि washback में हम लोग क्या देखते हैं, टीचिंग क्रैम कोर्सेज एंड टीचिंग टू बी टेस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉशबैक. ठीक है, मीन्स आपको ने जितना पढ़ाना है, जो पढ़ाना है वो कवर अप हुआ है या नहीं. इन सम केसेस द स्टूडेंट मे लर्न व्हेन वर्किंग ऑन अ टेस्ट और असेसमेंट. मीन्स जो है आप जब टेस्ट और असेसमेंट कर रहे हो उससे भी बच्चे कुछ सीख रहे हैं या नहीं. ठीक है, मीन्स आपके इस असेसमेंट टूल का क्या पॉजिटिव साइड है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, उसको हम लोग वॉशबैक में देखते हैं. ओके, देन अल्टरनेटिव असेसमेंट ऑप्शन. ओके, असेसमेंट ऑप्शन जो है अलग, उसका और भी ऑप्शंस है लाइक सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, oral production, student self checklist, peer checklist, offering and receiving holistic rating of oral presentation, listening comprehension. मतलब these are the types कि आप listening के लिए, reading के लिए, writing के लिए आप अलग अलग assessment tool भी बना सकते हो. आप अलग अलग rating scale भी बना सकते हो. ठीक है, अलग अलग आपका method भी हो सकता है जिसके थ्रू आप जो है assessment कर सकते हैं. ओके, देन कम ऑथेंटिक असेसमेंट. ओके, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड. जब आप किसी का परफॉर्मेंस चेक करते हो, एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन विच द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ रिस्पॉन्स ओरली और इन राइटिंग, इट रिक्वायर द लर्नर टू अकम्प्लिश अ कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट टास्क. ठीक है, मीन्स जहाँ पे बच्चे को परफॉर्म करके दिखाते हैं एंड ओरिजिनली मतलब ऑन देयर ओन, जहाँ पे चाहे वो राइटिंग टास्क हो या फिर उनका ओरल टास्क हो, वहाँ पे बच्चे दे विल परफॉर्म एंड दे विल कम अप विद देयर रिस्पॉन्स. वो क्या होता है, ऑथेंटिक असेसमेंट होता है. एंड इट इज ऑलवेज क्या होता है, इट इज ऑलवेज टीचर मेड. और ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज रिजल्ट और ग्रेड ओरिएंटेड. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट क्या क्या है, लाइक पोर्टफोलियो असेसमेंट, स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, ओरल इंटरव्यूज, राइटिंग samples. Okay, we are having project or exhibition, we are having experiments or demonstration. Okay, these are the examples of your authentic assessment. Okay, now we are having portfolio. अभी जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है that is पोर्टफोलियो. ओके, यानी बेसिकली लैंग्वेज टीचिंग पोर्टफोलियो असेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, पोर्टफोलियो इज कॉमनली यूज विद द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच. सी इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि व्हाट पोर्टफोलियो इज. ओके, जनरली पोर्टफोलियो क्या होता है कि इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर स्टैंडर्ड असेसमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. ओके, क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू कि इंग्लिश में क्या होता है कि इट इज़ अ मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब्जेक्ट. ये क्या है, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब्जेक्ट है. हियर वी हैव टू इंश्योर द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. तो बच्चों का कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कितना डेवलप हो रहा है. ऐसा नहीं है कि बच्चे एक बार में उनका चारों स्किल डेवलप हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. इट मे हैपन कि वन बाय वन उनका स्किल डेवलप हो. अभी एक स्किल ज़्यादा प्रॉम्प्ट है, बाद में दूसरा स्किल ज़्यादा प्रॉम्प्ट होता है. तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, टीचर कीप द रिकॉर्ड आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, चाहे आप कंप्यूटर्स के हेल्प से हो या फिर फाइल या फोल्डर के थ्रू हो. हम बच्चों का जो उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो स्किल का जो परफॉर्मेंस है, उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उनका स्पोकन में क्या परफॉर्मेंस था, राइटिंग में क्या इस एग्जाम में उन्होंने परफॉर्म किया, उनका क्लासरूम में लिसनिंग कैपेसिटी कैसा है, उनका रीडिंग कैपेसिटी कैसा है. तो अलग अलग इवेंट में थ्रू आउट द ईयर जो हम उनके जो परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखते हैं. एसओसी
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेस्ट एंड इवैल्यूएशन कि असेसमेंट आपका थ्रू आउट द ईयर चलता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने एक उनका फाइनल एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन थ्रू आउट द ईयर उनका परफॉर्मेंस क्या था, अच्छा था। तो पोर्टफोलियो में वो थ्रू आउट द ईयर बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा था उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, और एट द एंड हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, एंड देन वी गिव आवर फाइनल जजमेंट। सो पोर्टफोलियो इज सो मच इम्पॉर्टेंट बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जहाँ पे बच्चों का थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, हम उनका डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में डिफरेंट पर्टिकुलर जो है वो उनका क्या बोलोगे करिकुलर एस्पेक्ट्स में हम उनके परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड को रखते हैं, चाहे वो लिसनिंग में हो, स्पीकिंग में हो, रीडिंग में हो, राइटिंग में हो, या फिर ओवरऑल हो। एंड एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिकॉर्ड वी मेक आवर फाइनल जजमेंट। सो दैट इज portfolio. Basically portfolio का guidelines, just see, specify the purpose of the portfolio, give clear direction to student on how to get started, give guidelines. Okay, so it is all about how you work with the portfolio, but basically the portfolio is a very good alternative for the standard assessment basically in the teaching of English. Okay, सो अगर हम बात करें कि असेसिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड असेसिंग लैंग्वेज कंटेंट, ऐसे टोल्ड यू कि लैंग्वेज जो है इट इज़ मोर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट कंपेयरिंग टू कंटेंट। तो जो असेसमेंट हम लोग जो है स्किल वाइज करते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का, और अगर कंटेंट का बात करें तो डिस्क्रीट टेस्ट, इंटीग्रेटिव टेस्ट एंड कम्युनिकेटिव टेस्ट। ठीक है, ये हम लोग लेते हैं टेस्ट टू नो देयर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, बट बेसिकली वी फोकस ऑन द स्किल। इवन जो आपको आप देखोगे स्कूल में क्वेश्चन पे जो आता है इट इज कम्स divided under the various skills. Okay, so I hope you have understood something about skill and the importance of skill in English language. Okay, or the importance of assessment in English language teaching. Okay, thank you so much for your presence hearing. Any queries or anything else you want to ask me, you can ask me in the WhatsApp group. Okay, thank you so much. Thank you.